Okay, let's start with the introduction part. Starting with the MCQ third one. In the given reaction N2 plus O2 reversibly giving 2NO, the equilibrium means that concentration of reactant is changing whereas product is constant. Concentration of all substances is constant. Reactant is constant whereas product is changing. Yeah, all substances is changing. At equilibrium, the concentration of all the substances, that is all the reactants and products, become constant. So the moment you talk about chemical equilibrium, मैंने हम बोला है आपको 5 points बहुत ज़्यादा important. First, an equilibrium is applicable for a reversible reaction taking place in a closed container at a constant volume and at a constant temperature, and the equilibrium established is dynamic in nature. At equilibrium, the rates become equal and the concentration of all the substances become constant, meaning it doesn't change with time. So the answer is option 2. Next, rate of reaction curve for equilibrium can be like. और यहाँ पर the options have the graphs of concentration versus time. Which of the graph is correct? All. Because equilibrium पे concentration of reactants and products become constant. ठीक है, तो concentration constant हो जाता है, इसका मतलब सारे ही ग्राफ वैलिड है. बट अगर ये ग्राफ्स रेट वर्सेस टाइम का होता, then which of the graph would have been correct? Only the first one. Next, active mass concentration of 96 gram oxygen contained in a 2-liter vessel is. Now, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट यहाँ पर जो टर्म है ना, एक्टिव मास, that is nothing but concentration. Now, indirectly they have already mentioned concentration find करना है. But मान लो अगर ये concentration term ना होता, तो active mass is nothing but concentration only. वैसे तो यूनिट से भी समझ में आ जाता है, but याद रखना active mass of a substance is its concentration. And this terminology is generally used in law of mass action. जहां पर हम बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन के लिए the rate is dependent or proportional to the active masses of the reactants. So when we specify active masses, we are talking about concentration. Plus, now we know that concentration is number of moles per unit volume. So moles is given mass 96 upon the molar mass of oxygen 32 divided by the volume 2 liter, which will be equal to 1.5 molar. Answer is option 2. Next. In a reaction A plus B reversibly giving C plus D, the rate constant of forward and backward reactions are K1 and K2 respectively. Then the equilibrium constant K for the reaction is expressed as K1 upon K2. तो मैंने दो चीजें बताई थी इक्विलिब्रियम के लिए. एक, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो of the rate constant for forward to the rate constant for backward reaction, and the equilibrium constant is also generally expressed as concentration of products to the reactants with each concentration raised to the power equal to the stoichiometric coefficients. ठीक है. Next, this is an important question. At a certain temperature, following reactions have the equilibrium constant as shown below. So we have sulfur burning in oxygen to form SO2 with equilibrium constant Kc1, and sulfur burning in oxygen giving you SO3 with equilibrium constant Kc2. Question है, what is the equilibrium constant Kc for the reaction at the same temperature? So these are the given reactions, and this is the required reaction.
अब गिवन से रिक्वायर्ड तक अगर जाना है तो व्हाट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड बी डन? सोचो। गिवन दो रिएक्शंस है और रिक्वायर्ड एक रिएक्शन है। रिक्वायर्ड को गिवन से कैसे लेकर आओगे? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिवाइडिंग, हाँ बोलो, सॉरी। मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग। Multiplying and adding is a problem. Multiplying by 2 will give. बोलो गौतम। The second reaction can be expressed in two steps. As the first reaction followed by SO2 plus O2 plus SO3. Perfect, could be done. But then SO2 plus O2 giving you SO3, उसका equilibrium constant पता है क्या आपको? SO2 plus O2 giving SO3, वही तो फाइंड आउट करना है ना। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। रिक्वायर्ड में you want 2 moles of SO2 on the left and 2 moles of SO3 on the right. Concentrate on this. How do I get 2 moles of SO2 from which reaction? Let's say given में ये first है और ये second है. How can I get 2 SO2? Multiply the first one by 2. But multiplying by 2 will give me 2 SO2 on the right. I want it on the left. तो क्या करूं? रिवर्स रिएक्शन। हाँ, मतलब दो चीजें करनी पड़ेगी। माइनस फर्न मतलब रिवर्स किया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो उससे क्या होगा? आई विल गेट द रिएक्शन नाउ 2SO2 गिविंग 2S plus 2O2. And when the reaction is reversed and multiplied by 2, what happens to the equilibrium constant? Reciprocal and then raised to. Correct. Reciprocal and raised to 2. Matlab now the corresponding equilibrium constant for this reaction will become 1 upon 5 into 10 raised to 52 का square. हाँ कि नहीं बोलो? Yes, sir. And second reaction में 2SO3 is on the right and required में भी 2SO3 right में है। मतलब second reaction को ऐसे का ऐसा ले लो। मतलब if I write as it is 2S plus 3O2 reversibly giving 2SO3, my equilibrium constant will remain as it is. Now with this mathematical operation, if I write the net reaction, am I getting what was required? Am I getting what was required? Check करो ना। 2S and 2S is intermediate gets cancelled. 2O2 और 3O2, now 3O2 लेफ्ट में है, 2O2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1O2 बचेगा। मतलब अब नेट रिएक्शन 2SO2 plus O2 giving 2SO3. Is this the required? Yes. Now when two reactions are added, what happens to their equilibrium constants? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मतलब आपका जो आंसर है दैट इज 1 अपॉन KC1 का स्क्वायर इंटू KC2। करेक्ट। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर जनरली पूछा होता तो आंसर क्या होता? KC2 अपॉन KC1 का स्क्वायर। बोलो करेक्ट, समझा? Yes, sir. यस सर। अब आपको वैल्यू वाइज पूछा है तो दिस विल बी 10 raised to 29 अपॉन 25 into 10 to the power 104। ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 पावर माइनस 75 आएगा। 1 upon 25 is 0.04 into 10 power minus 75 and this will be 4 into 10 raised to minus 77, which will be option 3. समझा? यस सर। मतलब if you have a multiple given reactions and you have to find a required reaction, then उन given से required के लिए
अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन सोचो. इट कैन आइदर बी रिवर्स्ड, मल्टीप्लाइड बाय एनी होल नंबर और फ्रैक्शन आल्सो, एंड डिवाइड कर सकते हैं और बाद में रिएक्शंस को ऐड कर सकते हैं. और हमें पता है कि व्हेन वी डू दीज टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस. कैसे चेंज होता है, बस वही चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करना था. अंडरस्टूड द क्वेश्चन? Yes, sir. But what if आया the हुआ sulfur क्वेश्चन. doesn't हाँ, cancel? What if the sulfur doesn't cancel? it will get cancelled. There will be some common reactants which will get cancelled. Given से required आपको मिल ही जाएगा. उसके लिए कुछ intermediates हैं, they will get cancelled 100%. Okay. It's like मैंने जनरलाइज बताया था ना कि A to B, B to C और C to D ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है. ये गिवन है, मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर K1, K2, K3. So now I want the required A to D conversion. तो A to D मुझे कैसे मिलेगा? By just adding up all the three reactions, and when we add the reaction, the required equilibrium constant would be equal to multiplication of all the equilibrium constants. This was the general thing, right? तो उसमें इंटरमीडिएट्स कैंसिल होंगे होंगे होंगे. नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन N2 plus 3H2 giving 2NH3, the value of Kc depends upon Temperature. so much thought. Equilibrium constant depends only and only and only on temperature. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो ही चीजों से चेंज हो सकता है. वन इज टेम्परेचर एंड अदर इज व्हेन द क्या क्या पीछे हमने, हाँ तो मैंने दो चीजें बताई थी, राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कब होगा? पहला व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज, सेकंड व्हेन द स्टोइचियोमेट्री इज चेंज्ड. नेक्स्ट, the equilibrium constant in a reversible reaction at a given temperature depends on initial concentration of reactant या of products at equilibrium, या does not depend on initial concentration, या it is not characteristic of the reaction. Sorry, क्या बोला आपने? सुना नहीं. Does not depend on concentration. Correct. तो 16 और 17 एक्चुअली एक ही तरह की क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है. The answer is it depends only on temperature. It will not change if the concentrations, pressure or the catalyst is changed. Okay, so the answer is option 3. Next, the equilibrium constant Kp for the reaction of PCl5 giving PCl3 and Cl2 is 16. If the volume of the container is reduced to 1/2 of its original volume, the value of Kp for the reaction at the same temperature will be 16. 16. What is the reason? Temperature is unchanged. ठीक है, तो ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को इतना इतना ऑल्टर कर दिया, वॉल्यूम को इतना कर दिया, प्रेशर को इतना कर दिया, मोल्स को ऐसा ऐसा कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा. जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक किसी भी फैक्टर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है. इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन कैन चेंज, है ना? Equilibrium constant would remain unaltered, but the reaction can move in the forward or in the backward, altering the concentration in such a way that the ratio will always be same. समझ में आया? Equilibrium constant फिक्स होता है, लेकिन equilibrium का डायरेक्शन आगे पीछे हो सकता है, और वही तो कॉन्सेप्ट है एलसीपी का ना, शॉर्टलिस्ट प्रिंसिपल. छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया हुआ है, आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे.
बट याद रहे कि Kp at the same temperature irrespective of any condition getting altered, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Next, for which reaction Kp is equal to Kc? What was the hint for this? delta Ng 0. Correct. Because Kp Kc का relation is given as Kp equal to Kc into RT raised to delta Ng. अब ये दोनों इक्वल कब होगा? ओनली व्हेन डेल्टा Ng इज 0. अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो, इट विल हैव द वैल्यू 1. नेक्स्ट में हेबर्स प्रोसेस -2, ये 0 है, यही आपका आंसर है. एंड ये 2 - 3 -1 है. एंड देन for the hypothetical equilibrium as given, the unit of Kc will be, यूनिट का एक शॉर्टकट क्या था? Raised to delta Ng. सुपर. तो डेल्टा Ng दो काम करता है, Kp Kc का रिलेशन बताएगा और यूनिट बताएगा. यूनिट के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेज टू डेल्टा Ng. अब डेल्टा Ng मतलब सिर्फ गैसियस मोल्स के डिफरेंस लेने हैं. अब ये तो एक होमोजेनस इक्विलिब्रियम है जहां पर सारे सब्सटेंसेस गैसेस ही है, which is 10 on the right and 9 on the left. So product minus reactants will be equal to 1. Hence it will be concentration raised to 1, यानी मोलार. मोलार मतलब मोल पर लीटर इज द आंसर. और अगर Kp का यूनिट पूछा होता तो इट वुड हैव बीन जस्ट एटमॉस्फेयर रेज्ड टू 1. क्लियर? अगर यहाँ पर A को सॉलिड बना दिया, then what would have been the unit? Raised to 5. Raised to 5 हो जाता. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फिजिकल स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन डीलिंग विद केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस. पहले चेक करने का फिजिकल स्टेट्स को. नेक्स्ट, Kc and Kp for homogeneous reaction. Homogeneous मतलब all existing in the same phase. ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस होमोजेनस है. काको3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो रिएक्शन है, दैट इज अ हेटेरोजेनस रिएक्शन. Okay, now question. The reaction A plus B giving C plus D is studied in a 1 liter vessel at 250 degrees Celsius. The initial concentration of A was 3N and B was N. Initial दिया है. When equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found to be equal to the equilibrium concentration of B. इनिशियल दिया है और इक्विलिब्रियम पे C और B इक्वल हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन में. तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम? Now tell me, what is the way to solve this type of question? In one word, what is the way? Ice table बनाना है. आगे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आइस टेबल. अगर आपको आइस टेबल बनाने आता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज डन. ठीक है, तो नाउ आइस टेबल बनाने के लिए फर्स्ट यू नीड टू राइट द रिएक्शन A plus B रिवर्सिबली गिविंग C and D. फिर यहाँ पर इनिशियल, चेंज और इक्विलिब्रियम, आइस टेबल बना. ठीक है, अब इनिशियली A and B were how much? 3N 3N and N. C and D initially will be 0. 0. Now, as the reaction proceeds and it achieves equilibrium, C will have, let's say the number of moles is X. तो क्या करेंगे यहाँ? तो कितने सारे एग्जाम्पल लास्ट टाइम बताए थे ना, क्या करेंगे? Just look at the stoichiometry. 3N minus N. 3N minus X, N minus X, C and D will be X each. तो चेंज में क्या करते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट विल इंक्रीज बाय X and the reactant will decrease by X, so that equilibrium पे A and B available will be 3N minus X and N minus X. यहाँ पे X, यहाँ पे X.
ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो these are the moles at equilibrium and we require the concentrations for the equilibrium. So what do we do? Divide by the volume. अब यहाँ पर दो चीजों में you should be very happy. One, when volume is 1 liter, जब वॉल्यूम 1 लीटर दिया रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन मोल्स के बराबर होगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट डिवाइडिंग द वॉल्यूम. दूसरी बात, व्हेन डेल्टा एनजी इज 0, वॉल्यूम विल हैव नो इफेक्ट. बराबर की नहीं? एंड खास बात यह है कि इस इक्वेशन के लिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. वॉल्यूम भी 1 लीटर दिया है और डेल्टा एनजी भी 0 है. मतलब 1 लीटर ना भी दिया होता, इन केस इसमें 2 लीटर 1.5 लीटर दिया होता तो भी प्रॉब्लम नहीं था. बराबर? So can you explain the second point? When delta Ng is 0, see, if here delta Ng is 0, do you agree with that? Yes, sir. The concentrations will be mole per volume, per volume, per volume, per volume. Now, when you take the Kc ka ratio, it will be x upon v into x upon v upon 3n minus x upon v into n minus x upon v. v cancel हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो अगर यहाँ वॉल्यूम 2 लीटर दिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता. मतलब इसलिए मैंने बोला यू शुड बी हैप्पी केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में जब वॉल्यूम 1 लीटर है या फिर डेल्टा एनजी 0 या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है. उस केस में वॉल्यूम का आपको कोई लेना देना नहीं है. अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes, sir. तो अननेसेसरी देयर विल बी नो वेस्ट ऑफ टाइम कि वॉल्यूम आपका 2 लीटर्स भी दिया हो तो वॉल्यूम डिवाइड करके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज नॉट गोइंग टू हैव द इफेक्ट. अच्छा, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. इनिशियल तो हो गया. अब जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, सी का कॉन्सेंट्रेशन बी के बराबर हो गया. मतलब एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू बी एंड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मोल्स के बराबर ही है, तो x विल बी इक्वल टू n माइनस एक्स. तो यहां से 2x विल बी इक्वल टू n एंड जो अननोन वेरिएबल था x वो n/2 के बराबर हो गया. समझाइए? Yes, sir. So now having known the x unknown, I can just apply the value over here. 3n minus n/2 will become 5n/2. ये हो जाएगा n/2. This will be n/2. This will also be n/2. मतलब I have got all the moles or all the concentration of the reactants and products. अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है बस फाइंड कर लो. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम? क्या है? N/2. n/2 इज द आंसर. अगर a का पूछा होता तो 5n/2 होता. इनफैक्ट दिस शुड हैव बीन 3n minus n/2. ये n होना चाहिए था. अप्रोच क्लियर? Yes, sir. वापस बता रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई स्टेबल. इक्विलिब्रियम पे ये जो 4 चीजें आ गई ना, इससे आप कुछ भी कर सकते हो. मतलब मान लो इसके अलावा यू आर बीन आस्क्ड टू फाइंड द Kc वैल्यू, तो Kc वुड हैव बीन इक्वल टू n/2 into n/2 अपॉन 5n/2 into n/2. सब n/2 छू, बचा 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2. आ गया Kc वैल्यू. तो Kc के लिए भी इक्विलिब्रियम के मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन लगते हैं. और मान लो इसके अलावा Kp पूछ लिया, तो Kp और Kc तो इक्वल ही है ना, डेल्टा Ng 0 है. फिर यूनिट पूछा तो यहाँ पर ये यूनिट लेस होगा. ठीक है, तो एवरीथिंग यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, 8th one. When 3 moles of A and 1 mole of B are mixed in a 1 liter vessel, happiness 1 liter,
द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, A प्लस बी गिविंग यू 2C, डबल हैप्पीनेस, डेल्टा एन जी 0 है। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस आ जाना चाहिए। वॉल्यूम 1 लीटर, डेल्टा एन जी 0, ये दो कंडीशन में वॉल्यूम का टेंशन नहीं। एंड 1.5 मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, ये मिसिंग है यहाँ क्वेश्चन में। 1.5 moles of C are formed at equilibrium. The question है, the equilibrium constant for the reaction is. So again, what's the approach to find the equilibrium constant? Akriti, help me with the ice table. 3, 1, 0. Then product का change कितना? 1.5. पहले x के टर्म्स में बोलो, उसके बाद वैल्यू डालो। हमेशा पहले जनरल वे में सॉल्व करो। X 2x 2x. हाँ, स्टोइशियोमेट्री अब नॉन यूनिटी है ना, 2 है, मतलब यहाँ पर इट विल इंक्रीज बाय 2x एंड द a and b will decrease by x just x, क्योंकि 1 है। अब नेट क्या हो गया, 3 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स और ये 2x। समझा इस टेबल सबको? और यहाँ पे लिमिटिंग एक्सेस सोचना नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं सोचते हैं। अगर कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन है वहां पर द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस विल कम। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इनिशियल जो भी है इट विल बी डेल्ट एट इक्विलिब्रियम। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. ओके, नाउ मुझे बताओ, ये 1.5 मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? 2x. So 2x is 1.5, तो x मिल जाएगा 0.75, x मिला तो यहाँ डाल दो 0.25, यहाँ डाल दो 2.25। ठीक है, एंड वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब मोल्स ही आपका कॉन्सेंट्रेशन है, और डेल्टा एन जी वैसे भी 0 था, तो वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो नाउ योर केसी वैल्यू विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। सबकी वैल्यूज हमें पता है। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी यू विल सब्स्टिट्यूट? 1.5 या 0.75? 1.5. 1.5, क्योंकि सी का जो वैल्यू है 2x के बराबर है। सी का वैल्यू 2x के बराबर है। x तो हमने उधर से फाइंड किया। बहुत बार ना ये मिस्टेक हो जाता है दैट स्टूडेंट्स टेंड टू टेक दिस वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट, तो गड़बड़ नहीं करना, these mistakes are to be avoided. So now this should be 1.5 into 1.5 upon 2.25 into 0.25. 0.25 1.5 से 6 टाइम्स, और 1.5 into 6 9 होता है, एंड 2.25 फेमसली 9/4। फ्रैक्शंस ना याद रखो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 9 9 2 4 ऊपर गया, आंसर है Kc इक्वल टू 4, ऑप्शन 4। समझा क्या? Yes, sir. Yes. चलो, अभी 9th भी सिमिलर है, Kc इक्वल टू 9 फॉर द रिएक्शन। अब समथिंग इज मिसिंग फॉर द गिवन रिएक्शन, कैन यू टेल मी व्हाट? Physical state. So when the physical states are not mentioned, by default you have to consider them to be Yes. Yes. gases. क्यों? बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड में इक्विलिब्रियम का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, इसलिए डिफॉल्ट हमेशा गैसेस ले लेना है, अगर नहीं दिया तो। आगे, if A and B are taken in equal amounts, then ratio of C to A at equilibrium is, A and B इक्वल है तो C to A इक्विलिब्रियम पे क्या होगा वो बताना है। अगेन क्या करेंगे,
ठंडा ठंडा ice table. So equal amounts of A and B are there. मतलब you have to start with 1 से शुरू कर लो. तो A भी 1 है, B भी 1 है, ये 0 0. Now all are having the stoichiometry as 1. तो यहाँ पर x से बढ़ेगा और x से घटेगा. अब फाइनली यहाँ पर हो जाएगा. I think it's not visible here. यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये x और ये x. ठीक है. अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे. Apply the formula of KC. फाइंड आउट KC. तो KC एक्सप्रेशन क्या होगा, C इंटू डी अपॉन A इंटू बी. मतलब x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. एंड दैट KC वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट. 9. तो कैन आई से x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. प्लस माइनस आएगा, माइनस फॉर्म में ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे. तो अब x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3x. तो 4x इक्वल टू 3. यानी x जो अननोन हम लेते हैं दैट इज नाउ 3/4. बराबर. Yes. अब गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, रेशियो ऑफ C टू A. व्हाट इज दैट. X is to 1 by 1 minus. सॉरी, हाँ, x अपॉन 1 माइनस एक्स. मतलब 3/4 अपॉन 1/4. 4 कैंसल, बचेगा 3. और से ये भी समझता है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से 3 गुना ज्यादा है. C का कॉन्सेंट्रेशन इज थ्राइस ऑफ A. मतलब रिएक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. So in the options you can't see 3, that is why the answer will be option 4, none of this. Now इसका आंसर wrong दिया हुआ है. So please just make a correction over there in the booklet. They have given 0.75. Printed as 0.75, वो गलत है. आंसर 3 होगा. 0.75 सिर्फ C या D पूछा होता ना, then that would have been correct answer. अच्छा, और एक चीज, यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं दिया था ना. इसको मैं 1 मोल कंसिडर करूँ या 1 मोलार कंसिडर करूँ, फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विथ इक्वल अमाउंट्स. नाउ व्हेन दे हैव गिवन इक्वल अमाउंट्स आई कैन कंसिडर इट टू बी 1 मोलार. मैं यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही बात कर रहा हूँ, वैसे समझ लो. या फिर अज्यूम करो कि वॉल्यूम 1 लीटर है. आइदर वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर चेंज नहीं होगा. बराबर. Yes. So, हाँ जय, बोलना. I wasn't saying anything. You said something. I Good said one. yes, sir. Okay, then it's okay. चल, now ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका जो मैं टेक्निक बताऊंगा वो आप आगे सारे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करोगे. क्वेश्चन सिंपल है. एट अ सर्टेन टेम्परेचर 50% HI is dissociated at equilibrium. So the equilibrium constant for the reaction 2HI giving H2 plus I2 is. अल्फा वाले जनरल आइस टेबल भी मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट टाइम. If I have 2HI decomposing into H2 and I2, तो यहाँ पर whenever alpha is given, ये पहले एक स्टेटमेंट लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. Whenever alpha is given, the substance dissociated must be 1 mole. Whenever alpha is given in the question of chemical equilibrium numericals,
जो सब्सटेंस डिसोसिएटेड की बात कर रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे दिस पर्टिकुलर HI इज गिवन टू बी 2 मोल्स। अब इसमें जब आप अल्फा से डील करोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता है जहां पर थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ता है। तो उससे शॉर्टकट तरीका क्या है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप विजुअलाइज करो एज 1 HI ब्रेकिंग डाउन गिविंग यू हाफ ऑफ H2 एंड हाफ ऑफ I2। दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग द रिएक्शन अलोंग साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आई स्टेबल जो रिएक्शन के लिए पूछा उसके लिए ही बनाएंगे। ठीक है, नाउ it is not given what was the initial number of moles or the concentration of HI। तो जब कभी भी नहीं दिया जाएगा तो you have to just start with assumption। क्या लेंगे? 1 मोलार ले लो। नहीं दिया है तो स्टार्ट विथ 1 मोलार। बाकी क्वेश्चंस में अगर कहीं पे 2 मोल या 2 मोलार या 2.5 जो भी दिया होगा उससे स्टार्ट करो। जैसे मैंने ए बताया था, ए है ना, अगर नॉन यूनिटी होगा तो ए करके कंसिडर करो। नाउ इफ दिस इज 1 मोल या 1 मोलार इनिशियली तो ये 0 होगा। नाउ व्हाट विल बी द चेंज ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम? .25. 0.25। How did you get 0.25? Because 0.5 of HI is going to get dissociated, and HI has 1 Correct. H, H2 has 2 H, so divide by 2. तो यहाँ पर जो आप हाफ देख रहे हो ना, तो जब ये हाफ होगा तो आइस टेबल में हम क्या करते हैं, अल्फा अपॉन 2 लेते हैं। ठीक है, और आपका इनिशियल मोल अगर ए रहेगा तो ए अल्फा अपॉन 2 लिखते हैं। अब ए 1 है, अल्फा 0.5 है, तो डिवाइड बाई 2 आपको 0.25 मिलेगा। तो अब मैं जनरल करके लिखता हूं, बाद में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 एंड दिस विल डिक्रीज बाय अल्फा या 2 अल्फा, क्या लिखूं? Alpha. जस्ट अल्फा। ठीक है, तो अब ये स्टोइशियोमेट्री को भूल जाओ क्योंकि हम एक HI के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 एंड अल्फा इज गिवन टू बी इक्वल टू 0.5। नाउ आई कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अब ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.5, दिस विल बी 0.25 ईच। और इसको कॉन्सेंट्रेशन ही अज्यूम करो क्योंकि ना तो वॉल्यूम दिया है ना आपको इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट्स से Kc विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू 0.25 अपॉन 0.5 का स्क्वायर। While taking the equilibrium constant, you have to consider this stoichiometry, जो रिएक्शन के लिए किया। समझा? Yes, sir. Yes, sir. So 0.25 twice, 0.25 twice, 1 upon 4, which is 0.25 is the answer. आगे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे टाइप के आने वाले हैं। द फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। Let's see the other numericals. PCl5 decomposes giving you PCl3 and Cl2. In the reversible reaction, the moles of PCl5, PCl3 and Cl2 are A, B and C respectively. And the total pressure is P, then the value of Kp is Kp का वैल्यू। अब सोचो Kp के लिए what is required? Yes, sir. Partial pressure. Partial pressure. Partial pressure के लिए what is required? Mole fraction.
मोल फ्रैक्शन मतलब बेसिकली वी रिक्वायर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। नाउ हियर टेल मी ए बी एंड सी जो है, आर दे द इनिशियल मोल्स और इक्विलिब्रियम मोल्स? Initial. If you consider them to be initial, how do you arrive at the equilibrium moles? Now there is nothing which is given. अब यहाँ पर ना indirectly whenever they specify in the reversible reaction, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। वैसे तो ये साइन रिवर्सिबल का है, बट स्टेटमेंट में इफ दे आर स्पेसिफाइंग द रिवर्सिबल रिएक्शन ना, मतलब यू हैव टू रीड इट एज इन द रिवर्सिबल रिएक्शन द मोल्स आर एबीसी, मतलब इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एबीसी, क्योंकि आगे लिखा है टोटल प्रेशर P है। अब ये जो टोटल प्रेशर होता है, दिस इज बेसिकली द प्रेशर ऑफ द एंटायर मिक्सचर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज इक्विलिब्रियम की वैल्यूज है, मतलब यहां पर आपको इनिशियल नहीं लेना है, इक्विलिब्रियम ही लेना है। मतलब डायरेक्टली आइस का ई आपको दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। फाइन। Yes. Yes. So now if these are the equilibrium moles, tell me what is the partial pressure of PCl5? A upon A plus B plus C into P. Perfect. Mole fraction will be A upon A plus B plus C into the total pressure, and partial pressure of PCl3 will be B upon A plus B plus C into P, and partial pressure of Cl2 will be equal to C upon A plus B plus C into P. Can you directly tell me the answer? Kp का value? 3. Third one. Third one. Simple है ना? Partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5. तो जब न्यूमरेटर आप चेक करोगे तो ये बन जाएगा BC अपॉन A इंटू A प्लस बी प्लस सी, एक टर्म गायब होगा ऊपर और नीचे, तो एक ही बचेगा। एंड पार्शियल प्रेशर में भी P इंटू पी अपॉन P, एक P गायब होगा ऊपर नीचे, तो बचेगा एक P और बचेगा A प्लस बी प्लस सी इन द डिनोमिनेटर। हेंस आंसर ऑप्शन 3। So why is one wrong? One is wrong because you will have PV equal to N into RT. तो ये अगर टोटल मोल्स की बात करते हैं तो PV will be equal to A plus B plus C into RT. मतलब P upon A plus B plus C would have been RT upon V. V is missing ना? Yeah. Yes, yes. तो 1 भी करेक्ट हो सकता था had it been given as RT upon V. Yeah. Yes. Okay. Now we have one छोटू concept about reaction quotient and its applications. सबसे पहले मुझे बताओ, for a general reaction AA plus BB giving CC plus DD, if I take the ratio of concentrations of product upon the concentration of reactants raised to the power equal to the stoichiometric coefficient, and if these concentrations are measured at equilibrium, so this ratio will be equal to what? AC. AC. Everyone agrees? बट अब मैं आपको बोलता हूं कि ये जो concentrations है, these are non-equilibrium concentrations. They are the concentrations measured at any time t
other than equilibrium. मतलब इक्विलिब्रियम अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तब के ये कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज है. नाउ इज इट इक्वल टू Kc? नो. So whenever you take the concentrations का ratio at non-equilibrium condition, it will not be equal to Kc, it will be equal to Qc, जहां पर this Q is called reaction quotient. Reaction quotient. तो इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अंडरस्टैंड दैट. मान लो यू आर डीलिंग विद सम रिवर्सिबल रिएक्शन व्हिच हैज नॉट येट अचीव्ड इक्विलिब्रियम and you measured the concentration of the reactants and the products at any given time t. ठीक है. अब वो टाइम से इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए क्या करना चाहिए? रिएक्शन आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे बढ़ाना चाहिए? मतलब what should be the change done to the equilibrium that will be told by the QC. कैसे? उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूं. मान लो ये नंबर लाइन है जिसमें I have a reference of Kc for some reaction which is let's say hypothetically 100. एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100. Now for that reaction, let's say it has not achieved equilibrium, and during that you find the value of the concentrations ratio, and वो आपको मिल जाता है 50. वो 50 वैल्यू QC का होगा, हाँ कि नहीं? Yes. Yes. अब if the reaction has not achieved equilibrium, मतलब it is not in a stable condition. Equilibrium किसी चीज का establish हो जाता है, मतलब that thing becomes stable. Can I say equilibrium is stability? Yes, sir. हाँ कि नहीं? तो अगर QC का वैल्यू 50 है, मतलब the reaction is still not in a stable condition. So to achieve stability, QC जो 50 है should become Yes. 100. 100. मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए QC मस्ट इंक्रीज. नाउ QC इंक्रीज कब होगा? व्हेन द न्यूमरेटर इज Great. ग्रेटर. मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विल बी हायर देन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, एंड अंडर दैट सिनेरियो द रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो कंक्लूजन ये है कि अगर QC लेस देन Kc है तो वो रिएक्शन स्टेबल कब होगा? व्हेन इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ QC. समझा सबको? Yes. Similarly, if you are measuring the QC at any time t other than equilibrium, and if you get a value which is 150, meaning greater than Kc, again this is not in a stable condition. So to stabilize this or to move to the equilibrium, QC now must decrease. For that, the numerator has to be lesser than the denominator. And in that case, the equilibrium will move in backward. तो ये नंबर लाइन इसलिए मैंने बताया है ताकि क्लियरली समझ में आए कि अगर QC कम है तो आगे जाएगा, QC ज्यादा है तो पीछे आएगा, और अगर QC Kc के बराबर ही है तो कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज द रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम. स्टेबल ही कंडीशन में है ना, तो क्यों कुछ आगे पीछे बढ़ेगा? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन कोशेंट. मतलब मान लो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन,
then by comparing you can tell that the reaction will move in the forward, backward, or it is already at equilibrium. Let's see the question. A reaction mixture containing hydrogen, nitrogen, and ammonia has partial pressure 2 atmosphere, 1 atmosphere, and 3 atmosphere respectively. एक मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया है और पार्शियल प्रेशर इतना 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 है at 725 Kelvin. If the value of Kp for the reaction Haber's process is as given at 725 Kelvin at the same temperature, in which direction the net reaction will go? Forward, backward, no net reaction. That direction cannot be predicted. बताओ क्या करें? Calculate QC. Calculate QC. QC. अब यहाँ QC ना बोल के QP बोल दोगे क्योंकि पार्शियल प्रेशर है, ठीक है ना? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट एनी टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम, वापस बोल रहा हूँ, जब Q लिखते हो मतलब ये इक्विलिब्रियम वैल्यूज नहीं है, these are not the equilibrium values. So this will be equal to अमोनिया का 3 square and नीचे होगा नाइट्रोजन का 1 एंड हाइड्रोजन का 2 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 2 का क्यूब, 2 मतलब 9/8 which is 1.125. अब QP को कंपेयर करो KP से, क्या दिख रहा है? So don't you have to multiply by 36? Multiply by what? Gautam, sorry. No, sorry. Minus. These are directly the partial pressures. They are not the mole fractions multiplied by 2. हाँ. Doubt? Oh, sir. So now you can clearly see QP is 1.125 and KP is way less than that. तो QP greater than KP है, मतलब नंबर लाइन के हिसाब से रिएक्शन किधर जाना चाहिए? Backward. Backward is the answer. खत्म. समझा? Yes, sir. अब इसमें जब केसी वाले कोई क्वेश्चंस होंगे तो याद रखना, उसमें मोल्स अगर दिया है तो मोल्स अपन वॉल्यूम करना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम नॉन यूनिटी है और डेल्टा एनजी नॉन जीरो है. मतलब हेबर्स में कई बार ऐसा हो सकता है कि मोल्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो मोल अपन वॉल्यूम करना जरूरी होगा. क्लियर है ना? नेक्स्ट, degree of dissociation and its relation with vapor density. What is vapor density? Molar mass by 2. Vapor density into 2 is equal to molar mass. And vapor density actually क्या था? It is density of any gas relative to the density of hydrogen gas at STP. एंड उससे हमने डेरिवेशन किया था वेपर डेंसिटी और मोलर मास के रिलेशन का, ठीक है? अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अ सब्सटेंस ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कांट डिसोसिएट कंप्लीटली, इट हैज टू डिसोसिएट पार्शियली, देन ओनली द रिवर्सिबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल. तो द अल्फा एंड वेपर डेंसिटी का रिलेशन इज गिवन एज अल्फा इक्वल टू कैपिटल D minus D upon n minus 1 into small d, where capital D is theoretical vapor density. और theoretical vapor density मतलब जो भी सब्सटेंस टूट रहा है उसका मोलर मास अपॉन 2 करोगे, and D is the experimental vapor density which will be given in the numerical. experimental मतलब जो दिया हुआ होगा, observed भी बोल सकते हो आप, experimental या observed, है ना? And n जो है, that's very important, it is number of gaseous moles of products dissociated for
1 मोल, अरे अरे डिसोसिएटेड फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। पहले तो ध्यान रखो ये फॉर्मूला, अल्फा इज कैपिटल डी माइनस छोटू डी अपॉन एन माइनस वन छोटू डी। कैपिटल डी थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी है जो मोलर मास अपॉन 2 होगा, छोटू डी एक्सपेरिमेंटल अपॉन अपॉन नहीं सॉरी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है। पर एन जो है ना, दैट्स नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिसोसिएटेड फॉर 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब अगर मेरे पास PCl5 गैसियस है which is giving you PCl3 and Cl2, tell me what is N for this reaction? 2। N कितना होगा? 2। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसका ले लेते हैं पहले। ये बात 11th one, alpha is capital D minus छोटू d upon n minus 1 छोटू d correctly matches for and why? Sum of the moles is n. Sum of the moles of the gaseous product for 1 mole of the reactant is 1, है ना। अब बाकी सारे ऑप्शन में देखो वो अप्लाई नहीं हो रहा है। ये n क्या है? इट इज द मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अगर गैसियस प्रोडक्ट्स देखोगे तो इन दोनों का सम आपको मिलेगा n। Got it? Yes, sir. Next, consider the following hypothetical equilibrium, which is 2B giving you B2. If D is observed and capital D is theoretical VD, then degree of dissociation alpha will be. तो सबसे पहले बताओ n क्या होगा? Half. हाफ। Why half? For every 1 mole of. हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले देखने का ये 2 मोल्स नहीं होना चाहिए। अब 1 मोल ऑफ B गिव्स यू हाफ मोल ऑफ B2 गैसियस ना, तो 1 मोल कितना देता है वो आपका n होता है, तो n हाफ होगा। अगर यहाँ पर n हाफ होगा तो n माइनस 1 विल बिकम Minus half. One. माइनस हाफ। नाउ अल्फा के लिए द कैपिटल D माइनस D शुड ऑल्सो बी नेगेटिव, मतलब इन दैट केस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी बहुत ज्यादा आना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल केस, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल केस। ऐसा प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको खाली मैथमेटिकली सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस छोटू डी अपॉन माइनस हाफ इंटू छोटू डी। तो अगर ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 2, नेगेटिव साइन को इंटरचेंज करो तो ये छोटू डी माइनस कैपिटल डी अपॉन डी हो जाएगा। एंड यू सॉल्व दिस, इट विल बी 2d अपॉन डी माइनस कैपिटल डी 2d अपॉन डी। तो यहाँ पर कैंसिल एंड द आंसर वी गेट इज 2 माइनस 2 कैपिटल डी अपॉन डी। अगेन अगर इसको पॉजिटिव होना है तो फिर कैपिटल डी और डी का छोटा डी का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आंसर थर्ड है लेकिन हाइपोथेटिकल है। अब नेक्स्ट, फॉर इक्विलिब्रियम N2O4 colorless giving you 2NO2 reddish brown gas, the observed vapor density is 40 at 350 Kelvin. Calculate percentage dissociation of N2O4 at 350 Kelvin. The moment you see vapor density and alpha, matlab think of that relation. And when you think of that relation, the first thing is N equal to what? 1 के लिए 2 दे रहा है तो N 2 हो जाएगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स। अच्छा, व्हाट विल बी, ये तो छोटू डी हो गया ना, व्हाट विल बी कैपिटल डी?
46. इट विल बी मोलर मास ऑफ N2O4 का आधा ना, जो कि 92/2 आएगा इक्वल टू 46। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज है। अल्फा इज इक्वल टू वंस अगेन कैपिटल D माइनस 2D अपॉन n-1 इंटू D, विच इज इक्वल टू 46 माइनस 40 अपॉन 1 इंटू 40। परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम 600 अपॉन 40, which is equal to 60/4, 15% is the answer. मतलब with the vapor density, substance का alpha could be found. Clear? Yes, sir. चलो अभी moving back to the previous questions. हाँ, section D का first one. इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब बाकी तो आइस टेबल वाले ही है। In the above reaction, the initial concentration of A3 is A molar. If X is the degree of dissociation of A3, total number of moles at equilibrium will be. Equilibrium पे total moles कितने? Again शुरू करेंगे A3 giving 3A, I C E. Initial कितना? A, ये शून्य। अब चेंज प्रोडक्ट का, अगर ये ए है और अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो कितना लिखोगे? Minus AL बी minus AX माइनस क्यों? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट plus A plus प्लस 3A. व्हाट? हाँ प्लस 3AX। 3A तो इसके लिए आया ना, स्टोइशियोमेट्री के लिए। अगर ये A है तो ये बढ़ेगा 3 गुना, मतलब 3A से। और ये पूरा नहीं डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा दिया हुआ है तो ये प्लस 3AX होगा। एंड दिस विल डिक्रीज बाय minus AX. वंस अगेन बोल रहा हूं, आपका आइस टेबल अगर बन गया प्रॉपरली फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, गारंटीड। A minus AX and 3AX. अब these are the moles at equilibrium, तो total moles is just sum, which will be equal to A plus 2AX. And that is the answer. खत्म। अब इससे आप Kp भी ढूंढ सकते हो बिकॉज आपको मोल रेशियो पता चल जाएगा। एंड टोटल प्रेशर मान लो P दिया है तो आप Kp को ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट, the dissociation of CO2 can be expressed as C2CO2 giving you 2CO plus O2. If 2 moles of CO2 is taken initially and 40% of CO2 is dissociated at equilibrium, then the total number of moles at equilibrium is, again total moles at equilibrium. सबसे पहली चीज एक ऑब्जर्वेशन बिफोर स्टार्टिंग द आइस, व्हाट शुड बी डन? Divide by 2. Whenever alpha is given, the substance dissociated should start with 1 mole and not any other number of moles. मतलब इसके सामने वापस आप एक रिएक्शन रीराइट करो for 1 CO2 giving CO plus half O2. अब इनिशियली यहाँ पर 2 मोल्स है और मोल्स ही पूछा है तो वैसे वॉल्यूम की जरूरत भी नहीं है। तो ये 2 तो ये 0 0। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे? फॉर 2 CO what is the change at equilibrium? plus I Plus जोर से बोलो Plus ना बाबा। 0.8. Don't tell me the value.
मुझे एक्स और उसके टर्म्स में बोलो, अल्फा के टर्म्स में। +2 alpha. 0.8, हाँ 0.8 जो बोला वो बराबर है, लेकिन मुझे अल्फा के टर्म्स में ही बोलो। एंड मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग एज अल्फा के टर्म्स में, बाद में इक्विलिब्रियम पे वैल्यू डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो स्टोइशियोमेट्री कंसिडर करेंगे वो 1 करेंगे। ठीक है, लेकिन इनिशियल मोल्स 2 था, तो मान लो ये ए है, तो हम क्या लिखते हैं, ए अल्फा ना, वो ए अल्फा मतलब 2 इंटू 0.4 विच इज नथिंग बट 0.8। तो हम लिखेंगे 2 अल्फा से इंक्रीज, और यहाँ क्या लिखूं, Plus alpha. जस्ट अल्फा, जस्ट अल्फा, Alpha by 2. अल्फा बाई 2 ना गौतम। So it's getting multiplied by the moles now. हाँ, तो एक्चुअली ये क्या करेंगे हम, ए अल्फा बाई 2, फाइनली आपका अल्फा आएगा, लेकिन आप लिखोगे कैसे, 2 अल्फा बाई 2। अल्फा करेक्ट है, वापस मैं बता रहा हूँ, आप इस तरह से लिखो ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। आप कोई भी फॉर और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, यू नॉट हैव प्रॉब्लम। एंड इधर क्या लिखे, -2 alpha. -2 अल्फा, ए अल्फा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 -2 अल्फा, ये 2 अल्फा और ये अल्फा। अब आपसे पूछा था टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अगेन एन टोटल एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 2 -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये चो, तो आंसर इज 2 + 0.4 विच इज इक्वल टू 2.4। खत्म, ऑप्शन 1। समझा, अगेन इसको जनरलाइज करके समझो, ये ए है तो यहाँ पर 2 इंटू ए, सॉरी यहाँ पर 2 इंटू अल्फा, बिकॉज यहाँ स्टोइशियोमेट्री 1 ही कंसिडर करना है, तो बेसिकली इसको ए अल्फा बोलो, इसको ए अल्फा बाई 2 बोलो, और इसको ए अल्फा बोलो। And likewise, next, the degree of dissociation of SO3 is alpha at equilibrium pressure P naught. So Kp for this reaction is, again Kp के लिए पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स का आइस टेबल बनाने का है। तो शुरू करते हैं, 2SO3 रिवर्सिबली गिविंग 2SO2 and O2. Again, what is the first thing? Divide by 2. Divide. सामने इसी रिएक्शन को मत करना, सामने लिखो SO3 रिवर्सिबली गिविंग यू SO2 and half O2. अब there is no initial amount of SO3 which is mentioned, so you should start with 1. 1। तो 1 0 0, अब क्या लिखे यहाँ, Plus alpha. प्लस अल्फा Plus Alpha alpha. by एंड Minus alpha. Alpha. and finally we'll get 1 minus alpha and alpha by 2। नेक्स्ट स्टेप में पार्शियल प्रेशर्स के लिए हमेशा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम तो चाहिए ही चाहिए, विच विल बी 1 + अल्फा बाय 2। एंड फिर सबके पार्शियल प्रेशर्स को फाइंड कर लो और फिर केपी में डाल दो। ठीक है, तो लेट्स से द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ, सबसे पहले SO3 ले लेते हैं, इट्स 1 minus alpha upon 1 plus alpha by 2 into P naught. Partial pressure of SO2 will be equal to alpha upon 1 plus alpha by 2 into P naught, and partial pressure of O2 will be equal to alpha by 2 upon 1 plus alpha by 2 into P naught. सिर्फ मैथमेटिक्स है, so therefore Kp which will be equal to, अब Kp जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो पावर्स है वो यहाँ के लेने हैं, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ इस रिएक्शन को कुछ मत करो। आ रहा है ना समझ में? yes, sir. Yes, sir. पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर। ठीक है, अब SO2 के लिए हमारे पास है अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं, अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू पी नॉट का स्क्वायर इंटू ऑक्सीजन के लिए रेज टू 1 ही है, तो अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी नॉट एंड अपॉन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर एंड पी नॉट का स्क्वायर। पी नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, एक ही पी नॉट बचा। 1 प्लस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर ऊपर और नीचे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर क्या बचा, अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 और पी नॉट, और एक चीज नीचे बचा है वो है 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करो तो आपको ऊपर मिलेगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 So you forgot a विच by इज इक्वल, सॉरी 1 by 2 is अच्छा हाँ, ये डिवाइड बाई 2 भी है, अल्फा क्यूब बाई 2 है, 3 हो गया इंटू पी नॉट। अब ये 2 और इसका जो एलसीएम लेंगे वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा अल्फा क्यूब इंटू पी नॉट अपॉन 2 प्लस अल्फा, 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। कुछ बचा, अल्फा क्यूब 2 प्लस अल्फा पी नॉट, हाँ, विच इज ऑप्शन 2। अगेन इस पूरे क्वेश्चन में आई स्टेबल तक का जो पार्ट था वही इंपॉर्टेंट है, आगे तो सिंपल मैथ है जो अप्लाई करना है आपको। करेक्ट। Yes. लास्ट वन, the degree of dissociation of PCl5 obeying the equilibrium is approximately related to the pressure at equilibrium by, again we have to deal with alpha, और अल्फा जो है वो आपको Kp के थ्रू रिलेट होगा, और Kp ढूंढने के लिए वंस अगेन आपको आई स्टेबल का यूज करना है। तो PCl5 से मिला हमें PCl3 प्लस Cl2, आई स्टेबल बनाएंगे। स्टार्ट कुछ नहीं दिया है तो 1 0 0, ये हो जाएगा अल्फा अल्फा माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अल्फा एंड अल्फा। ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पर 1 मोल और स्टोइशियोमेट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, मतलब 1 प्लस अल्फा, और आपका Kp जो है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 बार, और जो टोटल प्रेशर है लेट्स से P का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। एक 1 प्लस अल्फा निकल जाएगा, न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर देगा, और इनटू यहाँ पर सॉरी एक पी भूल गया, एक पी कैंसिल होकर एक पी बचेगा। यहाँ तक क्लियर, ओके है सबको? Yes. नाउ जब बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब अल्फा की वैल्यू is actually very small, and when it is small 1 minus alpha square will be approximately equal to 1 only. Alpha is very small, 1 minus alpha square is almost 1, right? तो मेरा Kp जो है वो अल्फा स्क्वायर इंटू पी से रिलेट हो गया। Kp being a constant, alpha square is inverse to pressure and alpha will be inverse to square root of the pressure. That's how alpha and P are related. That's what was asked. समझा? Yes. Yes. yes.
लास्ट है, ये लास्ट है, नहीं हाँ यही लास्ट है. What will be the amount of dissociation if the volume is increased 16 times of initial volume in the reaction? Assume dissociation is negligible. मतलब alpha is very small. What will be the alpha if volume is increased 16 times? One by 4. 1 by 4. And how do you get this? 34. So how do you get this? P is inverse to V and alpha is inverse to root P. करेक्ट. तो पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसी को देख लो. अब जब भी वॉल्यूम में चेंज होगा तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम में. तो इफ वॉल्यूम इज चेंज, प्रेशर विल इनवर्सली चेंज. सो व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, प्रेशर विल डिक्रीज. वॉल्यूम अगर 16 टाइम्स हो रहा है तो प्रेशर विल बिकम 1 by 16. And now we know that for this particular equilibrium, alpha was inverse to square root of the pressure, or I can say it's directly proportional to root v. एक ही बात है ना, चलेगा कि नहीं? Boyle's law अप्लाई कर सकते हैं, right? Either ways अगर आप करो तो p को अगर 1 by 16 लो तो वो ऊपर जाएगा और root of 16 4 times हो जाएगा. मतलब alpha will increase 4 times when the volume is increased 16 times. Okay. Yes, sir. Okay, so I have completed up to the section D, which covers the previous part synopsis entirely, and thoda bahut part section E का बचा हुआ है, and then we have the last part of the chapter, Le-Chatelier's principle. So I request you to solve the MCQs up to E, section E, before Sunday. कल टेस्ट होने के बाद 1 घंटा लेकर बैठो, 1 से 1.5 घंटा, and please complete it. Okay? Yes, sir. Yes, sir.